नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में आर अशोक ने पत्रकारों से बात की। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बेंगलुरु में राज्य वक्फ समिति के अध्यक्ष अनवर बादशाह से की मुलाकात और इफ्तार में हुए शामिल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आज बीदर में भाजपा के विधानसभा में विपक्ष नेता आर अशोक बीदर पहुंचे और बीदर के पत्रिका भवन में पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा के उम्मीदवार भगवंत खुबा, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़ी, हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल सहित अन्य भाजपा नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। पार्लिमेंट ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ನಾಳೆ ಉಳಿದಂಥ ಸೀಟುಗಳೇನಿದೆ ಮತ್ತು JDS ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ JDS ನಾಯಕರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು. ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾಳೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ 28ಕ್ಕೆ 28 ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಸೋತರೆ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿನೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಈವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಬೀದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿನೂ ಎದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಅಂದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟರು. ಈಗ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿಗದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಾಮೈದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇವಾಗ ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೇಳೋವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ? ಆಯಿತು, 1-2 ಆಗಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನೋ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಇರೋವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ BJPಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹುಡುಕು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇವತ್ತಿನ ದುಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮದು 1957ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದಾಗ ನಾವು 4 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು, ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು, ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದ 4 ಗೆದ್ದಿದ್ರಿ. 4, ಓನ್ಲಿ 4 BJP. हाँ, जनसंख्या BJP दीपद गुर्तु। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने राज्य वक्फ समिति के अध्यक्ष अनवर बादशाह और मंत्री जमीर अहमद खान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अनवर बादशाह का सम्मान किया और साथ मंत्री जमीर अहमद खान का भी सम्मान किया। इस मौके पर नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा इफ्तार में शामिल हुए।
बीदर शहर में आज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। शहर के पुराने क्षेत्र में आज शाम में एसपी चन्नबसवಣ್ಣ एसएल के नेतृत्व में पुलिस विभाग की विभिन्न टीमों ने शक्ति प्रदर्शन किया। ನಾಳೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳು ರಂಜಾನ್ದ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಂದರೆ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ, ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆ ಇದೆ. ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ರೋಜಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏನು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಏನೇ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಏನಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಆಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. बीदर में होली के त्योहार की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रंगों की अस्थायी दुकानें स्थापित की जानी, जहां आज से ही रंगों को खरीदने का सिलसिला शुरू हुआ। आज रात होलिका दहन की भी तैयारियां की जा रही हैं। होली त्योहार की तैयारियों का विशेष कवरेज करने केपी न्यूज की टीम एंकर आयुषी विजयवर्गीय के नेतृत्व में शहर में चल रही होली के त्योहारों का जायजा लिया, जिसमें रंगों मिठाइयों के उपयोग के संबंध में जानकारी ली। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। होली का त्योहार है, रंगों की फुहार है। पूरा बाजार रंगों से सज चुका है और चंद घंटों का इंतजार और उसके बाद होली के रंगों में सब रंग जाएंगे। तो बाजार की तस्वीरें आप जरा देखिए कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भी तरह तरह के कलर्स लेकर आए हैं। कुछ नई वैरायटी की पिचकारियाँ इस बार मार्केट में हैं। कलर्स की अगर हम बात करें तो हर तरीके के कलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वहीं कई बहुत सारे बच्चे भी हैं जो होली के त्यौहार को लेकर एक्साइटेड रहते हैं, पिचकारियाँ खरीद रहे हैं, कलर खरीद रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ों की शॉपिंग करना है आज आप? मैं पिचकारी लेने आई हूँ। पिचकारी? और अच्छा, इतने सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं, कौन सा कलर आपको बहुत पसंद है? रेड। रेड कलर। तो इस बार होली कौन से कलर से खेलने वाले हो? रेड से ही। रेड से खेलते हो? अच्छा, आपको कौन सी होली पसंद है, वाटर वाली या फिर सूखी वाली? वाटर वाली। वाटर वाली पसंद है। और कलर कौन सा, पक्का या कच्चा? पक्का। पक्का। काला भूत तो नहीं बनाओगे किसी को? नहीं। चलिए, यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हैं। आप क्या खरीदना है आज? क्या लेना है? पिचकारी कैसी लग रही है आपको? चलिए, बच्चे कुछ ना बता पाए, कुछ बड़े बच्चे हैं। आप क्या क्या खरीदारी करने के लिए आए हो आज? पिचकारी। बस पिचकारी कलर से लोगे? लेंगे। होली पे कितना मज़ा आता है आपको? बहुत। अच्छा, खाने में क्या क्या बनाते हो आप होली पर, ये भी बताओ थोड़ा। खाने के लिए क्या क्या बनता है घर में? मिठाइयाँ बनती है क्या? मिठाइयाँ नहीं लेकर जाते हो घर पे? नहीं। कैमरा देख के शर्मा रहे हो। कुछ और बड़े बच्चे भी हैं यहाँ पर, मतलब कह सकते हैं पूरा बाजार जो है कलर्स के साथ साथ बच्चे भी यहाँ पर जो मौजूदगी है वो भी इसे और खूबसूरत बना रहे हैं। आप क्या क्या खरीदारी करने के लिए आज मार्केट में आए हो? मैं रंग और पिचकारी। रंग और पिचकारी। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू कलर। तो आप इस बार होली ब्लू कलर से खेलोगे? नहीं, तो सभी कलर। सभी कलर्स, यानी कह सकते हैं कि होली के दिन तो सारे रंग मिल जाएंगे। हाँ। और खाने में क्या पसंद है जो स्पेशली आप होली का इंतजार करते हो कि होली पे ये तो मैं पक्का खाऊंगा? मिठाई। मिठाइयाँ। क्या बात है सर, आप बच्चों को लेकर आए हैं, कितना एक्साइटमेंट बच्चों में रहता है होली को देखते हुए? साल को साल हम होली मनाते हैं मैडम, और हम सभी बच्चों को खिलौना वो होली का पिचकारी और सभी रंग कलर वो सब दिलाते हैं। साल को एक बार खुशियाँ मनाते हैं
और अब समर वेकेशन बच्चों का पूरा छुट्टी हो गया है, इस घर में रहते चुप मनाई करते, होली मनाई अच्छे से मनाई करते हैं और सभी स्वीट वेराइटीज़ ऑफ स्वीट्स डिश प्रिपेयर करते हैं। अच्छा है। बीदर की बात करूँ तो घर पे कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है या फिर बाजार से कौन सी मिठाइयाँ लाई जाती है? मिठाइयाँ बनाते हैं घर में मिठाई वो होळगी कन्नड़ में होळगी बोलते हैं हम, और ये सीरा बोलते हैं, सभी कलर्स का डिश है। सब मिठाइयाँ बनती है। तो वहीं कुछ और बच्चे भी हैं। आप लोग भी होली की शॉपिंग करके आए हो, पिचकारी लेकर आए हो अपने लिए? यस, कल के लिए कितना एक्साइटमेंट, कितनी एनर्जी, कितने लोगों को होली के रंग में रंग दोगे? बहुत लोगों को। बहुत लोगों को। और आप भी होली खेलोगे कल? हाँ या ना? पसंद है आपको कलर्स? हाँ। डर तो नहीं लगता रंगों से? नहीं, क्या बात है। देखिए बच्चे फुल ऑन एनर्जी के साथ एक्साइटेड हैं, एंथुजियास्टिक है होली के रंगों में रंगने के लिए। तो वहीं ये दुकान एक बार फिर से ज़रा आप देख लीजिए, जहाँ बहुत सारे रंग हैं। यहाँ के व्यापारी हमारे साथ हैं। इस बार क्या कुछ नया है, क्योंकि जब भी होली आती है हर साल कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते होंगे? ये तरह तरह के पिचकारियाँ चेंज होते रहते हैं, जो मॉडल के बन के आते हैं उसको हम एडवर्टाइजिंग के वास्ते भी करते हैं और सेल जांचते करने के वास्ते प्रयत्न करते हैं। इस बार का सबसे बड़ा अट्रैक्शन वाली पिचकारी अगर मैं बात करूँ तो कौन सी है? बच्चे किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? अब बच्चों के इसके हिसाब से पिचकारी दिलाना पड़ता है, लेते हैं। और बड़े से बड़े भी है पिचकारी, तो बड़ों को चाहिए वो पिचकारी दिला देते हैं बड़े बच्चों को। और अगर बिजनेस की बात करूँ तो कैसा है? होली पे जितना उम्मीद थी उतना या फिर थोड़ा ठंडा, कैसा? अभी क्या है, मार्केटिंग वर्ल्ड मेन सर्कल बोल के है अम्बेडकर सर्कल, यहाँ पे हर साल को जो है सो फुल मार्केटिंग एक ही जगह था, ये कलर उसलर बेचने का। अभी कई जगह कॉलोनी वॉलोनी बनाए है, सब जगह पे ये कर रहे हैं, उसके लिए इधर ज़रा कम है अभी मार्केटिंग। हमेशा होने की सर का होता है, उम्मीद है थोड़ा। सारे हर वर्ग की महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही है, कोशिश है शॉपिंग करें। आपकी शॉपिंग कैसे चल रही है होली को लेकर के? मस्त चल रही है। मस्त चल रही है। देखिए एक बार कैमरे की तरफ फेस भी दिखा दीजिए, कैमरे में फेस दिखना ज़रूरी है। और देखिए शॉपिंग कर रहे हो, कामकाज भी निपटा कर आए होंगे, क्योंकि महिलाओं पर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। घर पर क्या कुछ तैयारियाँ और मार्केट से क्या कुछ तैयारियाँ की जाती है? घर पे सब कुछ तैयारियां हो चुकी है, तो कलर्स बस बाकी थे? कलर्स ही बाकी थे, वो भी खरीदने के लिए आए से। कौन कौन से कलर्स आपको ज़्यादा पसंद है, या फिर किस तरीके की वैरायटी पर आपका ज़्यादा फोकस रहता है? गीले, सूखे, कलरफुल, किस तरह? नहीं, सूखे बेटर है, ग्रीन और रेड। ग्रीन और रेड। रेड। तो चलिए यहाँ पर कुछ और फीमेल्स हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों की शॉपिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग घर पर आए हैं हम। अच्छा, फ्रेंड्स सबके साथ कल होली मनाने वाले हैं, इसलिए शॉपिंग भी साथ में। हाँ। घर पर किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो आप होली के फेस्टिवल को, या फिर कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करने का? घर पे कर रहे हैं हम। घर पे सब हाँ। एक दूसरे के घर जा। और साथ ही आप भी कुछ कहेंगे होली के फेस्टिवल को लेकर के? मेरे फ्रेंड्स के घर में गई मैं होली खेलने के लिए, तो इसलिए आप भी उन्हीं के साथ शॉपिंग? हाँ, उनके साथ ही शॉपिंग करने आए। देखिए इसीलिए कहते हैं कि रंगों में रंग मिल जाते हैं। फ्रेंड्स को भी खास मौका मिलता है कि फ्रेंडशिप को एंजॉय किया जाए। हाँ, मेरे घर से इनके घर को गई मैं होली बनाने के लिए। क्या बात है, दोस्ती को और अच्छा एक प्यार का रंग। हाँ। चलिए, तो दोस्ती का रंग भी बहुत ज़ोरों शोरों से चढ़ेगा, क्योंकि होली का रंग है और होली के दिन हर कोई रंगीन होना चाहता है, या कहें कि होली के रंग में रंगना चाहता है। ऐसे में हम भी आपको होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। केप न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं होली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। वीडियो जर्नलिस्ट पपुराज के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केप न्यूज़ पीटर। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस निश्चित तौर पर 20 लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करेगी।
उन्होंने कहा, हम बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोलेंगे कि हम सभी 28 क्षेत्रों में जीतेंगे। वह रविवार को मैसूर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हम अपनी उपलब्धियों पर निर्भर हैं। हमारी गारंटी योजनाएं मुख्य रूप से हमें जीतने में मदद करेंगी। हमने लोगों से किए अपने वादे पूरे किए हैं। हमने गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए 10 महीने में 36,000 करोड़ रुपए पहले ही खर्च कर दिए हैं और हमने 52,009 रुपए भी आवंटित किए हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए उन योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए। बीजेपी नेता हमेशा झूठ बोलते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले किए गए 600 वादों में 10% भी पूरे नहीं हुए। क्या पीएम मोदी ने लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए जमा किए? क्या उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा की? क्या लोगों को मिला? अच्छे दिन का क्या हुआ? कहां है? लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शनिवार को कर्नाटक राज्य इकाई में 5 नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए। एआईसीसी के एक बयान में कहा गया कि पूर्व मंत्री तनवीर सेठ, राज्यसभा सदस्य जीसी चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी, एमएलसी मंजुनाथ भंडारी और वसंत कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नए चेहरों को नियुक्त करते समय पार्टी ने जातीय क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा है। सेठ मैसूर के एक मुस्लिम नेता हैं, चंद्रशेखर वोकलिंगा हैं और विनय कुलकर्णी धारवाड़ के पंचमसाली संप्रदाय से संबंधित वीरशैव लिंगायत हैं। रायचूर जिला कांग्रेस के पूर्व प्रमुख वसंत कुमार एक दलित नेता है। भंडारी तटीय कर्नाटका का प्रतिनिधित्व करने वाले भट्ट समुदाय के नेता हैं। वसंत कुमार और भंडारी दोनों एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वफादार हैं। वर्तमान में 5 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जारकिहोली और ईश्वर खंड्रे, मंत्री सलीम अहमद, एमएलसी और बीएन चंद्रप्पा। जेडीएस के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर महीनों से चली आ रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कर्नाटका में चुनाव के प्रभारी भाजपा महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने घोषणा की कि क्षेत्रीय दल मांड्या से चुनाव लड़ेगा, हासन और कोलार लोकसभा क्षेत्र। उन्होंने कहा कि पार्टी की राज्य चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में यह घोषणा की गई। उन्होंने कहा, दोनों गठबंधन सहयोगियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। बाद में अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा और जेडीएस जल्द ही मिलकर अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा और प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमार स्वामी राज्य में एनडीए के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विपक्ष की भाजपा ने सूखा राहत के लिए धन जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने इसे राजनीति से प्रेरित फैसला बताया और कहा कि यह कर्नाटका के इतिहास का काला दिन है। अशोक ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सोचते हैं कि उनका एकमात्र काम अपनी सभी गलतियों के लिए केंद्र पर उंगली उठाना है। भाजपा नेता ने कहा कि सिद्धरामैया को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सीखना चाहिए कि संघीय व्यवस्था में केंद्र के साथ कैसे काम किया जाए। अशोक ने कहा, चुनाव के बाद प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजनीति को अलग रखें और लोगों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दें। भाजपा नेता ने कहा कि राजनीतिक कथानक स्थापित करने के लिए लोगों के हितों का बलिदान देना अच्छा नहीं है और इतिहास सिद्धरामैया को माफ नहीं करेगा। भाजपा द्वारा मंड्या लोकसभा क्षेत्र को अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी जेडीएस को देने के साथ निर्दलीय सांसद ए सुमलता का कदम महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्होंने भगवा पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताई है। अखिल कर्नाटका अमरीश अभिमानीगढ़ संघ के अध्यक्ष और सुमलता के विश्वास पात्र बेलूर सोमशेखर के अनुसार मंड्या सांसद अगले कुछ दिनों में मंड्या में अपने घर पर सभी समर्थकों की एक बैठक बुलाएगी। उनसे परामर्श करेगी और फिर भविष्य के कदम पर निर्णय लेगी। सोमशेखर ने कहा कि सुमलता ने स्पष्ट कर दिया है कि मंड्या के बाहर उनका कोई राजनीतिक हित नहीं है और वह भाजपा के टिकट पर फिर से चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव मोर्चा प्रमुख तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट पर अपनी जीत दोहराने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी उम्मीदवार सौम्या रेड्डी इस
रुझान को पलटने में सक्षम हो सकती हैं। 1991 से बेंगलुरु दक्षिण में बीजेपी अपराजय बनी हुई है। सौम्या रेड्डी बेंगलुरु की जयनगर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हैं और राज्य के परिवहन मंत्री और मंजूराई रामलिंगा रेड्डी की बेटी हैं, जिनका क्षेत्र में काफी प्रभाव है। वह पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा उम्मीदवार से मामूली अंतर से हार गई। उन्हें मैदान में उतारकर कांग्रेस को बीजेपी को चुनौती देने की उम्मीद है। कांग्रेस ने 2019 में यहां से बीके हरिप्रसाद को मैदान में उतारा था, लेकिन तेजस्वी सूर्या ने 3.31 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से प्रचंड जीत दर्ज की। 2014 में कांग्रेस ने इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। तेजस्वी सूर्या के हिंदुत्व की आवाज के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर एक होनहार नेता के रूप में उभरने, निर्वाचन क्षेत्र में उनके सक्रिय दृष्टिकोण, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़ने से भाजपा खेमा उत्साहित है और इतिहास दोहराने को लेकर आश्वस्त। कर्नाटक की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही महाचुनावी जंग की बड़ी तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं, लेकिन बहुचर्चित भाजपा जनता दल सेक्युलर गठबंधन अभी तक मजबूती से जमीन पर पैर जमा नहीं पाई है। हालांकि यह ठोस प्रतीत होता है कि यदि इस सप्ताह की शुरुआत में कोर कमेटी की बैठक के दौरान जेडीएस नेताओं द्वारा व्यक्त की गई नाराजगी को देखा जाए तो भाजपा द्वारा जमीनी स्तर के नेताओं को अभी भी विश्वास में नहीं लिया गया है। यह भाजपा के लिए एक चेतावनी की घंटी है कि वह सभी स्तरों पर दोनों पार्टियों के बीच उचित तालमेल लाने के लिए तेजी से कार्य करे और गठबंधन के खिलाफ जेडीएस के भीतर भ्रम, चिंता और खराब माहौल पैदा करने से बचे। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की उपस्थिति वाली बैठक में कई जेडीएस नेताओं ने भाजपा पर उन्हें प्रचार या चुनाव संबंधी कार्यों में शामिल नहीं करने और कलबुर्गी में पीएम की रैलियों में आमंत्रित नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया। शिवमोगा क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं को लगा कि 18 लोकसभा सीटों पर वे 3 से 4% वोट ट्रांसफर करके बीजेपी की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर भाजपा अपनी सेवाओं का उपयोग करने में विफल रहती है और उसे नुकसान होता है तो वह इसके लिए जिम्मेदार होगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में आर अशोक ने पत्रकारों से बात की। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बेंगलुरु में राज्य वक्फ समिति के अध्यक्ष अनवर बादशाह से की मुलाकात और इफ्तार में हुए शामिल। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।